Hey, Rakhi, good evening. Shall we start taking the homework? Okay, good enough. So, let's start. What are the chances? Mathematician Julia Gilroy explains. What are the chances? Mathematician Julia Gilroy explains. Okay. In the year, how is this? In the year following the 9/11 plane attack, which year are we talking about? In the year following the 9/11 plane attacks, when we say in the year following the 9/11 plane attack, which year are we talking about? Are we talking about 2000 and uh, when was 9/11? It was 9/11, means 9 is the year. 9 is the year. 9 is the month. 11 is the date. 11th of 11th of October, November, December. 11th September. 11th of September, right? 11th September. This happened on the 11th of September. Which year was it, guys? Which year was it? 2001. 2001. Okay, it was 2001. Okay. Ravi, turn your camera on. Yes. And Ravi, yes, Ravi. I was asking, in the year following the 9/11 plane attack, so which year are we talking about? Are we talking? Yeah, please tell me. Make a guess. Make a guess from the phrase that you read. कुछ वर्ड्स हैं उनका कुछ असर होगा आपके दिमाग पे कुछ जादू नहीं होना है कुछ नया नहीं होना है बस उन्हीं शब्दों से मतलब निकालना है okay so please find the which year are we talking in the year following the 9/11 plane attack which year are we talking देखो बेटा ये सब चीजें जो है ना इस पे ना सिर्फ और सिर्फ तुम्हें काम करना कोई नहीं आपकी मदद करने आएगा हर एक सेंटेंस ओके क्या लिखा है in the year following the 9/11 plane attack. Which year was the play, which year are we talking about? Okay. To answer this, 2011. sorry, Sabaji, 2011. 2011. Okay, Sabaji, I think the, I Sorry, think sir. Oh, 9/11. 9/11 happened in 2001. 2001. Okay. The battery is not charged, I think. Okay. So for that, I need to connect with that. Give me a second. I thought this would be better, but no.
It's my phone, but I don't want to finish my phone. दोस्तों 9/11 कब हुआ था? मैं इसका जवाब दे देता। 9/11 हुआ था 2001। अब आप आंसर करिए क्या लिखा है। When was 9/11? September 11th or September 2001? पढ़िए बेटा। In the year following the 9/11 plane attack. Sana beta, which year are we talking about? In the year following the 9/11 plane attack. Sana, Rakshi, Sabah, good evening. आप में से कोई बता सकते हैं? Which year are we talking about? In the year following the 9/11 plane attack. 2000 and we are talking about 2000. If I say to you, follow me, इसका मतलब क्या है? अगर मैंने कहा फॉलो मी तो इसका मतलब क्या होगा? बच्चों मेरे पीछे था, मेरे पीछे फॉलो मी। फॉलो मतलब किसी के पीछे जाना। तो अगर मैं कहूँ इन द फॉलोइंग सेंटेंस, तो जो आगे सेंटेंस लिखा हुआ है वहां क्या लिखा है? इन द ईयर फॉलोइंग द 9/11 प्लेन अटैक। तो प्लेन अटैक 2001 में हुआ और यहाँ क्या लिखा है? इन द ईयर फॉलोइंग द अटैक। तो कौन से ईयर की बात हो रही है? फॉलो मतलब आपको पता है ना? वी आर द फॉलोअर्स ऑफ गांधी जी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग गांधी जी के पीछे चलने वाले हैं, गांधी जी के बाद हम लोग उनकी बात को मानने वाले हैं। तो अगर मैंने कहा इन द ईयर फॉलोइंग द 9/11 प्लेन अटैक, तो क्या हुआ इसका मतलब? कौन से साल की बात करेंगे? इतना बोलने के बाद नहीं पता चला? किसी को नहीं पता चल रहा? रवि, सबा, राखी, सना, किसी को नहीं पता चल रहा है इन द ईयर फॉलोइंग द 9/11 प्लेन अटैक। तो यहाँ पर कौन से साल की बात कर रहे हैं? अच्छा चलिए ठीक है, ठीक है, नहीं सुन रहा। अच्छा तो एक बात बताइए, घर पे रुक के बोले थे कि हमको समझ नहीं आया काम पड़े? मतलब मैं आपको बताऊं कि आपको क्या नहीं समझ में आ रहा है? ठीक, नहीं नहीं नहीं। क्या ये सवाल आपके जन्म था कि आते के साथ पूछे कौन से साल की बात हो रही है? तो समझ नहीं आया इन द ईयर फॉलोइंग 9/11 प्लेन। 2002 की बात हो रही है इन द ईयर फॉलोइंग द 9/11। तो उस 9/11 के अटैक के बाद आना है, फॉलोइंग द 9/11। You see, we can say paramilitary forces have been called following the riot, following the violence। मतलब क्या हुआ? फिर से फॉलोइंग मैंने यूज किया। यहाँ लिखा था फॉलोइंग द 9/11 प्लेन अटैक, अभी मैंने कहा paramilitary forces have been called following the following the riot, following the violence। मतलब क्या हुआ? पैरामिलिट्री फोर्स को बुलाया गया है वायलेंस के बाद। यहाँ लिखा हुआ ये है रोकने के लिए। हाँ, मैंने कोई ऐसा वर्ड नहीं बोला था। हाँ, ये मतलब वही है, मतलब वही है। लेकिन जब इसकी हिंदी करने के लिए कही जाएगी तो ये तो नहीं बोलना चाहिए। हाँ, ये मतलब 100% है कि उसको बुलाया है रोकने के लिए, लेकिन यहाँ पर फॉलोइंग द वायलेंस मतलब क्या हुआ? वायलेंस के बाद उनको बुलाया गया। वायलेंस हुआ है तो उसके बाद बुलाया जा रहा है कि भाई आगे आप लोग, हाँ वायलेंस हुआ, आगे रुकना, आगे कुछ और ना हो। Good evening, sir. हेलो रुपैया। Sana beta, you have not said a word when we joined because this is not what we are going to do. Please, everybody, understand.
you know, Yes. we have to be here active, you know, like this is something. मैं एक क्लास शुरू करूंगा कुछ समय के बाद, मे बी दिस ईयर, मे बी नेक्स्ट ईयर, जहाँ किसी को कोई बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई बोलेगा नहीं बोलेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वहां आपसे लैंग्वेज कम्युनिकेशन नहीं हो रही होगी, वहां पर बात होगी फैक्ट की, वहां बात होगी क्या सही है क्या गलत है इस बारे में, ठीक है। तो उसकी आपसे उम्मीद नहीं कि आप बोल के बताओ, यहाँ पर आप बोलना सीखना चाहते हो ना, इसलिए आपसे उम्मीद रहती है बोल के दिखाओ, बोल के दिखाओ वाली, ठीक है। जहां पर बोलने पर फोकस नहीं रहेगा, अब बोल के क्या दिखाओगे, अब जैसे वैसे आंसर सी बोल दो बात करता मैं, ऑप्शन सी लिख दो बात करता मैं, क्योंकि वैसे ही पढ़ाई, कुछ पढ़ाई ऐसी होती है, वो पढ़ाई भी करानी है, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल आप लोगों को थोड़ा एक्टिव रहना होगा, ओके। तो ऐसे नहीं, जैसे अभी आप हैं, जैसे मैंने सुना आपका नाम भी लिया तभी का, फिर भी आपने नहीं बोला ये सर आई एम नॉट श्योर व्हाट आई शुड से, कुछ भी जवाब देते हैं। अच्छा एक बात और है, ये गिल्टी फील वाला, ये वाला जवाब नहीं होता है, लैंग्वेज में नहीं समझना है तो ये चुप हो जाए कि हमको तो बुरा लग रहा है कि हमको जवाब नहीं समझ आ रहा है, दैट्स नॉट द राइट एटीट्यूड। कीप टॉकिंग ना, कीप टॉकिंग, यू नो सम इंग्लिश, कीप टॉकिंग टू मी, दैट विल गिव मी कॉन्फिडेंस कि चलो ये वाला नहीं समझ आ रहा, बाकी सब सिचुएशन सही है, इसको हेल्प कर देते हैं। बट सन्नाटा जब लगाते हो ना, तो मन में डाउट है, ठीक है, ये लगता है बहुत ज्यादा गड़बड़ है। In the year following the 9/11 plane attacks, तो इन द ईयर फॉलोइंग 9/11 प्लेन अटैक, मतलब वो साल जो 9/11 प्लेन अटैक के बाद आया, कौन सा उसके साल, प्लेन 9/11 के प्लेन अटैक के बाद कौन सा साल आएगा? तो वी आर टॉकिंग अबाउट इन 2002, इन सिंपल वर्ड, इन 2002, इन द ईयर। ये डिसाइफर करना बार बार, हर कोई पीछे नहीं आएगा, जब भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सब कुछ सीखते हैं थ्योरेटिकली सब समझ में आता है, एप्लीकेशन नहीं होता, वो गलती भी आप लोगों ने की। अगर मैंने जो कहा था पैरामिलिट्री फोर्सेस हैव बीन कॉल्ड फॉलोइंग द वायलेंस, तो आप समझ जाइए कि उनको बुला लिया गया है वायलेंस के बाद, वायलेंस के पहले नहीं बुलाया जा सकता, कभी नहीं होगा, राइट। वायलेंस हो गया, बुला लिया गया कि भैया आगे ना कुछ हो, रोकथाम करना है करके, ओके। ओके, फॉलोइंग समथिंग मतलब उसके बाद, क्योंकि आप फॉलो जब करते हैं किसी चीज के, उसके पीछे जाते हो, तो वहां से एक्स्ट्रापोलेट कर रहे हैं मीनिंग को। हम जहां से जैसे देखते हैं, मेरा भी नजरिया लैंग्वेज को देखने का, तो हम फॉलो का बेस मीनिंग से ही इसको रिलेट कर रहे हैं। आई एम अ फॉलोअर ऑफ गांधी, मतलब हम गांधी के पीछे चलने वाले, गांधी के आगे नहीं, हम उसके फॉलोअर है, यानी गांधी आगे उसके पीछे अब। तो फॉलो करना मतलब पीछे जाना। सर ही फॉलोड मी टू माई हाउस, एक लड़की ने कंप्लेन किया अपने टीचर से अबाउट अ क्लासमेट, ही फॉलोड मी टू माई हाउस, मतलब क्या हुआ, ही फॉलोड मी टू माई हाउस, मेरे घर तक आया पीछे पीछे वो। तो फॉलो का मीनिंग तो क्लियर है ही आपके दिमाग में, कि नहीं था फॉलो मतलब, एक फॉलो होता है अंडरस्टैंड एज वेल, डू यू फॉलो मी, मतलब वही हुआ। और फिर से वो पीछे पीछे आना, अगर मैं जहां आपको लेके जाना चाह रहा हूँ और आप पहुंच गए तो आप फॉलो कर लिए मुझे, यानी आप मेरी बात समझ पाए। मैं आपको डायरेक्शन दे रहा हूँ और आप मेरे पीछे नहीं आ पाए, यानी आप मुझे फॉलो नहीं कर पाए, यानी मेरी बात समझ में नहीं आई आपको, यू डिडंट अंडरस्टैंड मी, सिंपल, राइट। तो फॉलो मतलब पीछे जाना, और इस वजह से यहाँ पर इन द ईयर फॉलोइंग द 9/11 प्लेन अटैक, 9/11 प्लेन अटैक्स के बाद वाले साल में, और एक साल की बात हो रही है, इन द ईयर फॉलोइंग, नॉट इन द ईयर्स, अगर इन द ईयर्स लिख देते तो क्या हो जाता, 2002, 2003, 4 onwards, okay, yes, right. In the year following the 9/11 plane attack, many Americans decided flying was too risky. So in 2002 was a good year for aviation companies, or it was not very good year for aviation companies? Right. It was Because a lot not of good for people were aviation. very nervous about flying. They didn't want to fly. Their plane was hijacked and crashed into. Okay. Okay. Americans decided flying was too risky and drove instead. So whenever they had to travel somewhere, they drove. They did not fly. They did not travel by plane. They traveled by car. Okay. And drove instead.
About 1,600 people died as a result. In which year? Are you aware? Are you aware? Can you connect the dots and say that these 1,600 people died in the year 2002? अगर आप इस नतीजे पे पहुंचे तो आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल, एनालिटिकल स्किल बहुत अच्छी है। बड़ी बात समझ में आ रही है? वहां लिखा हुआ नहीं है ये लाइन, लेकिन लिखा हुआ है, बात समझिए। उनके लिए लिखा हुआ है जो डॉट कनेक्ट करना जानते हैं। समझिए ऐसे कि एक बाथरूम से एक लड़का निकला कपड़ा अपना सही करते हुए, और 1-2 सेकंड के बाद एक लड़की निकली। आगे मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं, आपने कुछ नहीं देखा, आपने कुछ नहीं रिकॉर्ड किया, लेकिन आपने सब देखा एक तरह से। वैसे ही यहाँ भी, लेकिन अगर एक छोटा सा बच्चा 5 साल का बच्चा रहेगा, उसको कोई डॉट कनेक्ट करना वहां पे नहीं आएगा उस सिचुएशन में। तो ऐसे ही यहाँ पर भी आपकी मैच्योरिटी लगेगी, लिंग्विस्टिक मैच्योरिटी। वहाँ सोशल मैच्योरिटी लगेगी। 15 साल का लड़का समझेगा नहीं ये लड़का है या फिर लड़की है, इन दो से एक ही बात में उसको टेंशन होगा, राइट, उसके दिमाग में चलेगा कुछ। लेकिन एक 5 साल के बच्चे के नहीं चलेगा, राइट। ऑब्वियसली इसके पास सोशल मैच्योरिटी नहीं है, नहीं जानता इस दुनिया को। वैसे ही लिंग्विस्टिक मैच्योरिटी जिसके पास है, दैट पर्सन विल इजीली कनेक्ट विद और कहेगा कि 1600 पीपल डाइड एज अ रिजल्ट। कहा, कहाँ, जो अभी तक बात करते आ रहे हैं, किस बारे में बात करें, इन द ईयर 2002। तो अगर मैं ये टेक्स्ट दे करके पूछ दूं हाउ मेनी 1,600 people died in which year, in how much time, in what period? So the answer will be in 2002। ठीक है, देखो कैसे क्वेश्चन को इजी करा जाता है, यही टेक्स्ट लिखते हो तो उसको। ठीक है, देखो मैं बताता हूँ कि एग्जाम क्यों आपके इंग्लिश का सही इवेल्युएशन नहीं कर सकता, कि कोई एग्जाम आप पास करते हो कि नहीं, इससे आपके सही इंग्लिश का इवेल्युएशन नहीं हो सकता मेरे दोस्त। यू कैन नॉट रिलाई ऑन योर रिजल्ट to feel that your English has improved or it hasn't improved. Means the result of an exam is no indication of your improvement. Let me explain why. मैं इतना आसानी से ये बात बताने वाला हूँ। देखो बेटा, यही आपके सामने टेक्स्ट लिखा जाए, ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन ये बनाया जाए, how many people died in the year 2002? How many people died in the year following 9/11 attacks, plane attack? तो 10 में 8 लड़के 1600 पीपल डाइड लिख देंगे, क्योंकि वहां पर इनको लगेगा कि हाउ मेनी पीपल डाइड, यहाँ लिखा हुआ 1,600 पीपल डाइड, वो लिख देंगे, यस। लेकिन अगर यही टेक्स्ट दे करके ये सवाल लिखा जाए मेरे बच्चे, इन व्हाट पीरियड डिड 1,600 पीपल डाई, अब छोड़ दिया जाए इस क्वेश्चन के, अब आंसर करो। टेक्स्ट वही था, अब इसका आंसर करो। तो पहले सवाल का जवाब सारे लोग लगभग दे रहे हैं इसी टेक्स्ट को पढ़ के, इसी टेक्स्ट को पढ़ के इसी के बारे में ये सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा है कोई। बस उसकी वजह होगी कुछ लोग दे पाएंगे, क्योंकि अब जो है ना आपको कॉम्प्रिहेंशन और एनालिटिकल स्किल अपनी दिखानी पड़ेगी। तो ऑब्वियसली एक ही टेक्स्ट दिया गया, लेकिन क्वेश्चन मुश्किल हो सकते हैं। टेल मी अबाउट 1,600 people died as a result. Why? What happened? Why did 1,600 people die? Because following the 9/11 plane attack, you know, following 9/11 plane attacks, what happened? People in America got nervous. They got scared of flying and they started driving, right? As a result, 1,600 people died. It means there were lots of road accidents. 1,600 people died in 1 year. That's because the chances of dying in a plane crash are 1 in 11 million. The chances of dying in a plane crash, बस इसका ये मतलब मत निकाल लेना कल की तरह कि मतलब प्लेन क्रैश होगा तो 11 मिलियन में एक बार मरने के चांस है, यानी 11 मिलियन बार एक्सीडेंट होगा तो एक बार मरेंगे, ऐसा नहीं। एक्सीडेंट होगा तो मर ही जाएंगे। हम लोग नॉर्मल आदमी ऐसे ही सोचता है दोस्तों। यहाँ पर आती है समझदारी की बात। एक
साधारण आदमी सोचता है कि एक्सीडेंट हुआ हो तो मर जाएंगे, इसमें तो हाथ पैर टूटेगा। समझ में आ रही बात? बट सपोज 11 million people travel, 11 million people travel, okay, by plane. One person will die on average. Only one person will die on average. But when you travel by car, 5,000 people travel by car, one person will die on average. 11 million is 1 crore 10 lakhs. And here 5,000. So there are more chances of dying when you are driving than when you are flying. Flying is safer than driving. If people fly, they should feel more safe because the chances of dying in a plane crash is 1 in 11 million. What does it mean? When 11 million people will fly, one of them will die. But the chances of dying in a car crash is the chances of dying in a car crash are much higher. The chances मैंने बोला था इसलिए R बोलना पड़ेगा, right? The chances of dying in a car crash are much higher. 1 in every 5,000. अच्छा, समझते हैं इसको और तरीके से। ये सिर्फ मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे पता है आप लोग का मैथ होता नहीं है। अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट होते, IIT को, मुझे कुछ एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन? कुछ एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता। आप कहते हैं अंडरस्टैंड, बिकॉज इंजीनियरिंग करने वाले दिमाग ये सब चीजों में वैसे लगाते हैं, तब नहीं पहुंच पाते ना IIT में। भाई ट्राई तो बहुत लोग करते हैं बट दे डोंट गेट देयर बिकॉज ऑफ देयर, उनका दिमाग ऐसे इंफॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर पाता। एंड आई नो ये सबसे बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है जो मैंने कल एड्रेस कर दी थी कि एक्सीडेंट होगा तो मर जाएंगे तुरंत। प्लेन क्रैश में बचने का चांस नहीं। कुछ लोग बस ऐसे देखते हैं, प्लेन क्रैश में बचने का चांस नहीं है। तो प्लेन क्रैश में बचने का चांस नहीं है तो फिर तो प्लेन क्रैश सबसे ज्यादा डेंजरस हो गया। कार में तो बच जाते हैं, एयरबैग निकला। बट द प्रॉब्लम है, if you look at the number of total people who travel by car in 1 year, okay, let's say that the total number of people who traveled by car in 1 year is 1 crore, okay, and total number of people who flew is also 1 crore. Then guess what? On average, only one person will die in a plane crash. And here, 5,000, divide 1 crore by 5,000. 5,000 to 10,000. 10,000 to 80, 1 lakh. Then 00, 1 crore. So basically, 2,000 people will have died, when 1 crore people travel by car. That's the average. और ये हम लोग को कैसे पता है दोस्तों, बताइए? हम लोग को ये पता कैसे? चलिए बात करते हैं, ये हम लोग को कैसे पता है? दैट्स अ गुड क्वेश्चन ना। मैं आप लोगों को चैलेंज करता हूँ, बताइए मुझे कैसे पता है हम लोग को ये चीज। फिर से मैं बताता हूँ, जब आप एक हायर लेवल पर पढ़ाई करने जाओगे तो अब आपके कॉमन सेंस से खाली काम नहीं चलेगा, आपको एक्स्ट्रा भी समझना होगा। कॉमन सेंस मतलब बेसिक नहीं है ना, एलिमेंट्री में इस तरह के चैलेंजिंग फैक्ट्स नहीं आते थे कि जिसको इतना दिमाग लगा के समझना पड़े। हम लोग को कैसे पता, सबाजी, राखी, रुपैया, साहिल, सना, हम लोग को कैसे पता, ये सब कैसे पता? We have record. Every person who flies, we have records of those people, no? And when there are accidents, we have records of those as well. So we saw how many people have traveled so far and how many people have died so far. So we have found the ratio that these many people have traveled, these many people have died. Simple mathematics. We have records of deaths in car accidents as well. We know how many cars are running and everything. They have records of those things as well. So accordingly, they have found out that driving is riskier than flying. But for a car crash, the chances are much higher.
1 in 5,000. The problem is that people feel something is dangerous. The problem is that people feel something is dangerous but don't understand the true risk. Okay? We understand danger. We understand something is dangerous, but we don't understand the true risk. और true risk समझने के लिए मैथमेटिक्स में अच्छा होना चाहिए, yes or no? अभी तो दिखाया, तुम लोग क्यों नहीं समझ पा रहे थे इस चीज को? बात समझो ना, वो दिमाग उतना नहीं चल पा रहा ना मैथ्स का कि 11 मिलियन ट्रैवल करता है तो एक आदमी मरता है। ये बात हमारे दिमाग को आसानी से एक्सेप्ट नहीं होता कि फ्लाइट में लगता है हवाई जहाज से ट्रैवल करेंगे, कुछ भी हुआ मर जाएंगे, इतना ऊपर से कोई बचेगा? सबके पास पैराशूट नहीं होता, दैट्स द प्रॉब्लम। ओके, so you have often heard there was an accident and all the passengers died, but car accidents you hear people are in hospital. So common sense says that flying is more dangerous than driving. So we understand that people feel something is dangerous, but they don't understand the true risk. प्लेन क्रैशेस, हवाई जहाज का दुर्घटना होता है, प्लेन क्रैशेस मतलब क्या हुआ? अच्छा नहीं, यहाँ पर नाम के तौर पर यूज है। प्लेन क्रैशेस, टेररिस्ट अटैक्स एंड मर्डर्स आर बिग न्यूज स्टोरीज। याद है ना, कल कई ने सुना था मर्डर, ऑब्वियसली ये सब लोग को लग रहा होगा मर्डर हुआ तो मर गया, तो बात करता है 100% काम। ओके, तो वैसे सोचना नहीं था। प्लेन क्रैशेस, टेररिस्ट अटैक्स एंड मर्डर, compound nouns, guys. Plane crashes, terrorist attack, compound nouns, two nouns. Okay, crash is a noun, plane is a noun, plane crashes, terrorist attack, terrorist is a noun, attack is a noun, terrorist attack, हवाई जहाज की दुर्घटना, आतंकवादी हमले, and murders are big news stories. When these things happen, every newspaper puts them on the front page. They are big news stories. So we remember them and feel afraid. We remember them and feel afraid. We remember them, याद रखते हैं हम लोग इन चीजों को यहाँ पर याद रखते हैं कि याद करते हैं, क्या होना चाहिए? We remember them and feel afraid. If the news told us that thousands died of that day from bad diet, if the news told us thousands died that day from bad diet, lack of exercise and car accidents, we wouldn't forget their danger so easily. हम लोग नहीं भूलेंगे. We wouldn't forget their danger so easily. So why do we not remember that these things kill people? These things are more dangerous. Lack of exercise, bad diet, car accidents. Because these things don't make headlines. These things don't come on the front page of the newspaper. And that's why we are not impacted. We do not get that fear of these things. We still only feel afraid of flying and terrorist attacks and murder. On average, one American dies every day in an accident in the bar. On average, one American dies every day in an accident in the bar. One American dies every day. Okay, on average. One American dies each year from a shark attack. One American dies each year from a shark attack too. So if we were logical, अगर हम लोग logical होते, we would find having a bath more frightening than shark. अच्छा देखा, वो sorry, गौर करो. On average, one American dies every day in a car in an accident in the bath. Okay, but only one American dies each year from a shark attack. One American in 1 year, and we have 365 Americans in 1 year. So if we were logical, we would be more afraid of having a bath than meeting a shark in the ocean. We would find having a bath more frightening than shark if we were logical. तो ये सेंटेंस सेकंड कंडीशन में ले दो. जैसे क्या लिखा? अगर हम लोग लॉजिकल होते तो हम लोग को नहाने से ज्यादा डर लगता, ना कि शार्क से. If we were logical, we would be more scared of bath than shark. We would be more frightened of bathing, having a bath,
देन मीटिंग शार्क एंड योर। लेकिन हम लोग किस चीज से शार्क से ज्यादा करते हैं? नहाते जाते उसमें किसी को लगता है किसको का? 365 आदमी गुज निकल जाता है बेचारा, ऊपर वाले से मिल लेता है जाके, ओके, एवरी ईयर। और वहां शार्क एक को मिलाती है ऊपर वाले से। फिर भी हम लोग शार्क को ज्यादा डरते, शार्क से, भाई तो बहुत खतरनाक। हालांकि मुझे इससे गुस्सा भी बहुत, आई थिंक देर इज अ लॉजिक व्हाई पीपल आर मोर अफ्रेड ऑफ शार्क। आई थिंक द रीजन है, हाउ मेनी पीपल go to the beach? We need a number of that. We need a number of that. How many people go onto the beach? Unless you go to the beach, do you think you can be attacked by a shark? Can you be attacked by a shark when you're in your house? No. How many people visit the ये जो मैं कर रहा हूँ, ये मैं कर रहा हूँ, पता नहीं तुम लोग क्यों नहीं करते हो, मुझे नहीं पता। शायद लैंग्वेज ऐसी है, इंग्लिश इसलिए नहीं करते। हिंदी में भी करो तो मुझे बड़ी खुशी होगी, और मुझे अपने आप पे इस बात के लिए गर्व है। ओके, मुझसे जब कोई डेटा शेयर करता है और डेटा से मुझे अपने तरफ लाने की कोशिश करता है कोई बात बोल के, तो मेरा दिमाग थोड़े समय के लिए हो सकता है ब्लॉक हो जाए, मान जाए, लेकिन हमेशा के लिए उससे बेवकूफ नहीं बनेगा। मुझे बस एक छोटा सा अपॉर्चुनिटी चाहिए, मैं अगर मिला मुझे, मैं पकड़ लूंगा कि वो मुझे कैसे बेवकूफ बना रहा है। आई डिसएग्री विद दिस फैक्ट हियर कि ये ज्यादा फ्राइटनिंग होना चाहिए हैविंग अ बाथ। लेट मी टेल यू व्हाई। हाउ मेनी पीपल गो टू द बीच एवरी ईयर? लेट्स से वन वन इन 100 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, एक 1%, 1% people go to the beach on the daily basis, not on the daily basis, on any one day, एक दिन में, okay, on any one day, 1% भी लोग नहीं जाएंगे। तो total population of, US is 400 million. Do you think 4 million people are on the beach every day in the US? Nah, I don't think so. 4 million means 40 lakh people. 40 lakh people on different beaches? Nah, I think it is much, much smaller. Okay, 0.1% maybe. 4 लाख लोग मैक्सिमम एक दिन में बीच पे होते होंगे, ऑलराइट। और उनमें से एक 4 लाख पीपल मल्टीप्लाइड बाय 365, प्लीज अंडरस्टैंड व्हाई आई एम डूइंग दिस। 365 से गुना कर देते हैं 4 लाख, ठीक है। 4 लाख लोग जाते होंगे रोज बीच पे, तो आज ये 4 लग गए, कल कोई और 4 लाख। 4 लाख मल्टीप्लाइड बाय 365 डेज, इतने लोग बीच पे गए, और उसमें से एक मर गया शार्क से, राइट। नाउ टेल मी, हाउ मेनी पीपल विजिट द बाथ एवरी डे? Every person, all 400 million people go to the bath every day, except for those who have constipation maybe, or those who are kids, they don't like going every day, ignore them, very small for, but most people visit the bath maybe 2 times, 3 times, 4 times, right guys? And then 1% dies every day. तो बात करो 400 million multiplied by 3-4 times, कितनी बार तो सब लोग बाथरूम में जाते हैं for different purposes, and one of them dies. तो फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा हुई? मेरे ख्याल से शार्क टैंक से मरने वाले की फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाएगी, जो निकल के आएगा ना। कम बार, कम लोग विजिट करते हैं बीच को, और उसमें से एक मर जाता है। 4 ही लाख लोग जाते हैं, 400 मिलियन, मतलब 1000 गुना ज्यादा हो गया। बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही कुछ लोगों को। अगेन फिर से बता रहा हूँ, अगर यहाँ पर मैं कुछ ऐसे लोगों को पढ़ा रहा होता ये बात, जिनका मैथ बहुत स्ट्रांग है, कहते हैं बिल्कुल समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। मैं उतने अच्छे से एक्सप्लेन शायद नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा मैथ पर्पस नहीं है पढ़ाना, लेकिन फिर भी एक सिंपल सी बात समझो ना, कि टोटल नंबर ऑफ पीपल जो गए बीच पे, उसमें से एक मरा, तो कितने लोग गए? तो मात्र 4 लाख लोग गए। यहाँ 400 मिलियन लोग रोज बाथरूम जा रहे हैं 3 बार, यानी 1200 मिलियन लोग में एक मरा, ऐसा समझो। 1200 मिलियन में एक मरा, वहां 1200 मिलियन कब पहुंचेंगे लोग एक मरने के लिए? साल भर में भी 1200 मिलियन नहीं होगा, ठीक है। 4 मिलियन लोग जाएंगे तब जाकर के 1200 मिलियन होगा साल भर में, 300 दिन, राइट। तो 1200 के लगभग, तब आप एक आदमी मर रहे हो। तो फ्रीक्वेंसी अभी भी रिस्की वही है, शार्क वाला ही ज्यादा उस हिसाब से। तो यहाँ जो ये ट्विस्ट दिया था ना,
कि ना, if we were logical, we would find bath, having a bath more pricing than bath. I don't agree. अगर आपको मेरी लॉजिक सही लगी हो तो अच्छी बात है, नहीं लगी तो कोई बात नहीं, मैथ पढ़िए, मैं सही हूँ, आपको सही लगूं चाहे नहीं, आई एम राइट, ओके, यस. Understanding risk. Permutation combination एक chapter है, if you study, you will understand risk better. To understand risk, you need to understand probability. To understand risk, you need to understand probability. इसमें इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन फंक्शन ये सब भी आता है, पता नहीं आप लोग मैथ्स में पढ़े होंगे, मैं तो भूल चुका पढ़ के. Okay, in 11th 12th. To understand risk, you need to understand probability. The first person to study it was a 16th century Italian mathematician. The first person to study it was a 16th century Italian mathematician. The first person to study what? To study what? Probability. The first person to study probability was a 16th century Italian mathematician, Girolamo Cardano. A big gambler. A big gambler, Cardano, wanted to know the chances of winning money at different games. He was trying to figure out the odds, the chances. Abhi chances bolte, baad mein odds bhi bol sakte hain, okay? Odds of winning money at different games. He was the first to show probability as a fraction or percentage. He was the first man to show probability as a fraction or percentage. अगर आपको ये लाइन नहीं समझ में आ रहा हिंदी में, लेकिन ये लाइन समझ में आ रहा है, क्या मैं बोलता हूँ, सचिन तेंदुलकर वाज द फर्स्ट टू स्कोर अ डबल सेंचुरी. अगर आपको ये समझ में आ रहा है लेकिन ये समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके एक्सपोजर की बात है. इंग्लिश आपका बिल्कुल वैसी लेवल पे है जो दोनों लाइन समझने वाले का हो. बात समझ आ रही है? बस दुनियादारी में आप थोड़े पीछे दिमाग अप्लाई करने लगे, बिकॉज सेंटेंस वही है बेटा. सचिन तेंदुलकर वाज द फर्स्ट टू स्कोर अ डबल सेंचुरी इन वन डे. He was the first to show probability as a fraction or percentage. He was the first person who represented probability in the form of fraction or percentage. That is 1 in 4 or 25%. 1 in 4 or 25%. इस तरह से probability बता. What is the probability of getting heads when you toss a coin? 1 in 2, 50%. ये कौन किया सबसे पहले ऐसे बोलने का तरीका कौन लाया? 1 in 2 या 50%. ऐसे कौन बताया प्रोबेबिलिटी को? This guy, Girolamo Cardano. He was Italian. He was the first person to use this kind of representation of probability. Unfortunately, these numbers can confuse us. If you hear that the chances of being killed by lightning are 1 in 300,000, if you hear that the chances of being killed or the odds of being killed by lightning are 1 in 300,000, you won't worry about. ये दिक्कत है. जब ऐसे आप नंबर सुनते तो आप कंफ्यूज जाते, आप टेंशन नहीं लेंगे, you won't worry about it. If you heard, अब सुनो, if you heard that 24,000 people die from lightning strikes every year, you might be more careful in the next spot. See, the same data has been presented differently. One scares you more and the other scares you less. See how interesting this is. When you hear that the chances of dying in a lightning strike is 1 in 300,000, 3 lakh में एक आदमी जाए, ऐसा सोचेंगे, right? But 24,000 people die from lightning strikes every year. 30 साल में मरता है. हमने जब बाहर बिजली चमकता होता है, all right, I could be the next person. My number can also go in the data. Okay, I can also be